आज का दंगल संसद में चुनाव सुधार के मुद्दे पर चल रही चर्चा को लेकर है। इस चर्चा में विपक्ष की ओर से राहुल गांधी नेता विपक्ष ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने देश के संस्थानों पर कब्जा कर लिया है और इसी में चुनाव आयोग भी शामिल है, जो निष्पक्ष चुनाव नहीं करा रहा। राहुल गांधी ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से लेकर फर्जी वोटर लिस्ट तक और एसआईआर की मंशा से लेकर विपक्ष की शिकायतों की अनदेखी तक के तमाम आरोप लगाए हैं। इससे पहले विपक्षी दलों की ओर से एसआईआर की मौजूदा प्रक्रिया की संवैधानिकता को लेकर भी सवाल उठाए गए और इसे वोट काटने और एनआरसी लागू करने की कोशिश बताया गया। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर नाकामी का आरोप लगाते हुए यह भी सवाल उठाया है कि बिहार में एसआईआर के बावजूद 1,20,000 फर्जी वोटर मौजूद थे। एक नया दावा राहुल गांधी ने आज संसद में किया है और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से निशिकांत दुबे ने इस चर्चा में भाग लिया। दोनों दलों की ओर से संसद में कैसा मुकाबला चल रहा है, सबसे पहले जरा वो सुन लेते हैं। I am talking about the subject. In order to capture the vote, you have to capture institutions. I am saying that institutions of India are captured, and I will come to the point, which is Election Commission is captured. So, the project of the RSS was to capture the institutional framework of the country, and I said how the education system has been captured. Vice Chancellor after Vice Chancellor after Vice Chancellor is placed not on merit, not on capability, not on scientific temper, but on the fact that he belongs to a particular organization. Second capture, which helps in destroying democracy, the capture of the intelligence agencies. We have the Home Minister sitting here, the capture of the CBI, of the ED, of the Income Tax Department. And the systematic placement of bureaucrats who favor their ideology and attack the opposition and anybody who chooses to oppose the RSS. That is the second institutional capture. And the third institute, there are many more. I can go on. And the third election, the third capture of the institution that directly controls the election system of our country, the Election Commission. वरुण सिंह की कमेटी बनी 1975 में। उन्होंने सारे इंस्टीट्यूशन को खत्म कर दिया, अध्यक्ष महोदय, जिसके लिए आज फिर से लगे हुए हैं। इस संविधान में 121 बार राष्ट्रपति का जिक्र है। इस संविधान में 121 बार राष्ट्रपति महोदय का जिक्र है। आपको आश्चर्य होगा कि एक संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति के सारे अधिकार को कांग्रेस ने खत्म कर दिया। राष्ट्रपति रबर स्टैंप हो गया। राष्ट्रपति जो कैबिनेट कह कर देगी उस पर मोहर मारना उसका अंतिम लक्ष्य हो गया। राष्ट्रपति का इंस्टीट्यूशन खत्म हो गया। इंदिरा गांधी ने इसी वोट चोरी करके जब रायबरेली का चुनाव जीता और जब फैसला हुआ कोर्ट का, तो ऐसा सिचुएशन इस व्यक्ति ने पैदा किया, इस पार्टी ने पैदा किया कि आपको आश्चर्य होगा कि 3 जज को बाईपास करके एक ऐसे चीफ जस्टिस को बना दिया जो 8.5 साल तक इसका मुख्य न्यायाधीश रहा। प्रेस की पूरी स्वतंत्रता खत्म हो गई। Now, I am not saying this without proof. I have put forth adequate proof about how the Election Commission is colluding with those in power to shape the elections. But I want to ask 3 questions first, which will make it very clear that the BJP is directing and using the Election Commission to damage India's democracy. The first question, why is it that the CJI was removed from the selection panel of the Election Commissioner? What motivation could there be to remove the CJI? Do we not believe in the CJI? Of course we believe in the CJI. Why is he not in that room? I sit in that room. It is so-called a democratic decision. On one side, Prime Minister Narendra Modi and Mr. Amit Shah. On the
leader of the opposition. I have no voice in that room. What they decide is what happens. So the first question, why is the Prime Minister and Amit Shah so keen on choosing exactly who the election commissioner is going to be? ये 1980 का जवाब है। पी शिवशंकर का कांग्रेस के मंत्री थे। इंद्रजीत गुप्ता जो है उन्होंने प्रश्न पूछा और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज बिहार का ही चुनाव, चूंकि अभी डॉक्टर संजय जायसवाल बोल रहे थे, बिहार के काफी लोग बोले कि एसआईआर के बाद हम बड़े बहुमत से जीत कर आए हैं। आपको आश्चर्य होगा सर कि 324 की विधानसभा थी, 324 की पूरे लिस्ट के साथ है, मैंने नहीं दिया, वो पी शिवशंकर ने इस फ्लोर पर दिया है। 81 विधानसभा में दोबारा पोल करना पड़ा, काउंटर मांड हुआ था। और इस 81 विधानसभा में यदि आप कहेंगे तो उसका नाम पढ़ दूंगा सर। विश्रामपुर में 50 जगह जो है बैलेट बॉक्स छीन लिए गए रास्ते में आते हुए। पांकी में बूथ नंबर 28 पर जो है सारे छीन लिए गए। रफीगंज में, नोखा में, भभुआ में, दिनारा में, कारातरी में, मसरख में, बख्तियारपुर में, बाढ़ में 81 जगह पर चुनाव काउंटर मांड हुआ था सर। इसी बैलेट पेपर के कारण शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी को वोट नहीं देने दिया जा रहा था सर। आज क्या फिर से वही वापस आना चाहते हैं? देश की चुनावी सियासत में संसद से लेकर सड़क तक हलचल है। एक तरफ संसद चुनाव सुधार के मुद्दे पर चर्चा कर रही है, दूसरी तरफ वोटर लिस्ट सुधार के एसआईआर पर भड़की ममता बनर्जी रैली में केंद्र की चिट्ठियां फाड़ दे रही हैं। और इधर उत्तर प्रदेश की सरकार खोज रही है कि सूबे में कितने घुसपैठिए छिपे बैठे हैं। विपक्ष पहले दिन से चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया का विरोध कर रहा है। चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाने वाली कांग्रेस ने एसआईआर को भी वोट काटने का हथकंडा करार दिया तो विपक्षी दलों की कतार कांग्रेस के साथ खड़ी हो गई। शीतकालीन सत्र में चर्चा शुरू हुई तो सभी दलों के निशाने पर चुनाव आयोग था। एसआईआर के विरोध में विपक्षी दलों के नेताओं ने जो दलीलें सदन में रखी, उनका लब्बोलुआब ये था कि एसआईआर असंवैधानिक है क्योंकि एक साथ इतने बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट सुधार का नियम नहीं है। एसआईआर गैर कानूनी है क्योंकि चुनाव आयोग दूसरे तरीके से नागरिकता का फैसला कर रहा है। विपक्ष कहता है कि एसआईआर चुनाव आयोग की मनमानी है क्योंकि कई क्षेत्रों में परिसीमन के बावजूद 2002 की पुरानी वोटर लिस्ट को मानक माना जा रहा है। विपक्ष दावा करता है कि एसआईआर अमानवीय है क्योंकि इससे बीएलओ पर सरकारी सियासी दबाव पड़ रहा है और वो आत्महत्या कर रहे हैं। विपक्ष कहता है कि एसआईआर अनैतिक है क्योंकि 2024 में वोट देने वाले लोगों को अब वोटर नहीं माना जा रहा है। विपक्ष का आरोप ये भी है कि एसआईआर अप्रासंगिक है क्योंकि घुसपैठिए पकड़ने के दावे के बावजूद बिहार में आयोग घुसपैठियों की संख्या नहीं बता पाया। कांग्रेस ने तो सदन में चुनाव आयोग के व्यापक एसआईआर के अधिकार की संवैधानिकता को ही चुनौती देते हुए तमाम तर्क रखे। मैं बहुत खेद के साथ कहना चाह रहा हूं कि देश भर में एसआईआर पे चर्चा है, कई प्रदेशों में एसआईआर हो रहा है, पर मैं बहुत जिम्मेवारी से यह बात कह रहा हूं कि चुनाव आयोग के पास कानूनी तौर पर एसआईआर करवाने का कोई औचित्य नहीं है। सरकार चूंकि ये चर्चा चुनाव सुधार के मुद्दे पर करा रही है तो विपक्षी दलों ने एसआईआर से आगे चुनाव आयोग के कामकाज के तौर तरीकों को लेकर भी तमाम सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता से लेकर अनदेखी तक के आरोप लगाए, वोट चोरी से लेकर फर्जी वोटिंग तक की शिकायत की और मौजूदा एसआईआर से पहले 2022 में ही हजारों वोटर के नाम काटने का आरोप भी आयोग पर लगाया है। अखिलेश यादव ने वोटर लिस्ट की कॉपी दिखाते हुए दावा किया कि यूपी में चुनकर समाजवादी पार्टी के 15,000 से अधिक समर्थक वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं। 15,000 वोट काटे हैं और 2027 के 22 के चुनाव में मैंने आरोप लगाया था कि इलेक्शन कमीशन ने जानबूझ करके और सरकार के लोगों ने मिल करके उत्तर प्रदेश में हर विधानसभा में वोट काटे थे और चिन्हित कर करके वोट काटे थे और ये चिन्हित किया था कि ये समाजवादी पार्टी का वोट कौन है जिसको काटा जाए और हजारों की संख्या में वोट काटे थे। और जब इलेक्शन कमीशन से हम लोगों ने शिकायत की तो उन्होंने एफिडेविट मांगे थे। मैंने हजारों लोगों के एफिडेविट दिए थे अध्यक्ष महोदय और ये कहा था कि ये जिंदा थे। 17 में वोट डाला उन्होंने और 22 में जाकर के उनका वोट कट गया है, लेकिन किसी भी अधिकारी के ऊपर अभी तक इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की।
तो दरअसल चुनाव के सुधार पर दरअसल चर्चा होनी थी एक सदन में। चुनाव के सुधार पर चर्चा हो रही है। कुल मिलाकर चुनाव आयोग पर सीधे हमला विपक्ष बोलने की कोशिश कर रहा है और उसके साथ साथ चुनाव की प्रक्रिया पर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। वहां राज्यसभा के भीतर वंदे मातरम पर चर्चा चल रही है। तो कुल मिलाकर विपक्ष और पक्ष के बीच में तलवारें खींची हुई है। कई मुद्दे हैं, चर्चा होगी। हमारे साथ में प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, आलोक शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं, प्रोफेसर नवल किशोर आरजेडी के प्रवक्ता भी इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। बिहार का मुद्दा एक बार फिर एसआईआर की इस चर्चा में उठाया गया और राहुल गांधी ने खास करके आरोप लगाया हुआ है कि बिहार के भीतर भी फर्जी वोटिंग हुई है। अनुप्रिया यादव जनता दल यूनाइटेड से इस चर्चा में शामिल होंगी और उसके साथ साथ संजय शर्मा तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता भी इस चर्चा में शामिल होंगे। 3 सवालों के साथ इस चर्चा की शुरुआत मैं करना चाहता हूं। पहला सवाल, क्या संसद में चुनाव सुधार पर चर्चा के बजाय सिर्फ पक्ष विपक्ष की सियासत यहां पर हो रही है? दूसरा सवाल, क्या चुनाव आयोग पर आरोप लगाने के लिए एसआईआर की मौजूदा प्रक्रिया का विरोध यहां पर हो रहा है? चुनाव एसआईआर प्रक्रिया के जरिए चुनाव आयोग पर कहीं ना कहीं निशाना साधा जा रहा है। और तीसरा सवाल, क्या बैलेट पेपर से ज्यादा निष्पक्ष चुनाव कराए जा सकते हैं? क्योंकि एक बार फिर विपक्ष के तरफ से यह मुद्दा उठाया गया है कि बैलेट पेपर पर जाए ईवीएम को खारिज किया जाए। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि आखिरकार ये ईवीएम कौन बना रहा है, इसकी पूरी जानकारी लोगों के सामने होनी चाहिए। तो क्या बैलेट पेपर की चुनाव प्रक्रिया के जरिए ही निष्पक्ष चुनाव हो सकते हैं? शुरुआत में कांग्रेस के प्रवक्ता से करना चाहूंगा, आलोक शर्मा। लंबी फहरिस्त है विपक्ष के तरफ से चुनाव आयोग के जरिए सरकार पर निशाना साधने की। आप कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है एसआईआर के जरिए, आप कह रहे हैं कि बोगस वोटिंग हो रही है, आप कह रहे हैं कि काउंटिंग के भीतर भी गड़बड़ी हो रही है और ईवीएम का आरोप भी आपका पहले से है ही। इसके बावजूद क्या आपको लगता है कि चुनाव का सामना कांग्रेस पार्टी की तरफ से और साथ साथ विपक्ष की तरफ से भी किया जाएगा? देखिए, मुझे लगता है साहिल जी, सबसे पहले तो 5 ईवीएम एक पंचायत की हरियाणा की हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और नतीजा बदल गया एक पंचायत का। 5 में टेम्परिंग पाई गई और वो नतीजा पिछले 3 महीने पहले पूरे देश ने देखा क्या हुआ। एक चंडीगढ़ मॉडल भी देखा था जिसके अंदर बीजेपी का एक जो कॉर्पोरेटर था वो क्या कर रहा था। इलेक्शन कमीशन ही बीजेपी है, बीजेपी ही इलेक्शन कमीशन है। ये मुद्दा केवल वोट चोरी तक का नहीं है, पूरे लोकतंत्र को चोरी करने का है, सरकारों को चोरी करने का है। बिहार में एसआईआर हुआ, एसआईआर में 5 लाख अभी भी डुप्लीकेट वोटर हैं। फिर क्या एसआईआर हुआ भाई? 10 लाख वोटर अभी भी वहां पर ऐसे हैं जिनके एड्रेस 000 हैं या फादर नेम जो है वो ABCDEFGH है। घुसपैठियों के नाम से शुरू हुए थे और सरकार बनाने पे इलेक्शन कमीशन ने अपना काम बंद कर दिया। और ये पूरा प्रूव होता है कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन को बचाती है। अपने पिट्ठू अधिकारियों को जो गृह मंत्रालय में और तमाम जगह पर बिना रीढ़ की हड्डी के जो अधिकारी होते हैं उनको लेकर आते हैं। और ये हम नहीं कह रहे, वहां की जो इंटरनल चर्चाएं होती हैं उनको भी ओवर रूल कर दिया जाता है। सिद्धू साहब का जो वहां इलेक्शन कमिश्नर है उनका नोट देखा होगा। हम तो सोच रहे थे कि व्हाट्सएप पे यूनिवर्सिटियां ही चल रही हैं आजकल ज्ञान की, इलेक्शन कमीशन भी व्हाट्सएप पे चल रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की पूरी खबर पूरे देश ने पढ़ी, आपने भी पढ़ी होगी। सिलेक्शन बीजेपी करेगी, फिर उसके बाद सीसीटीवी फुटेज इलेक्शन कमीशन नहीं देगा। 6 बजे के बाद 8-8, 10-10% वोट हो जाएगा। फिर मशीन रीडेबल जो फोटो आइडेंटिटी वाली जो वोटर लिस्ट है वो हम नहीं देंगे। फिर इनको सेफ्टी भी दी जाएगी कि इनके ऊपर कोई केस नहीं होगा। वो कौन करेगा? सरकार करेगी। तो मतलब सरकार बीजेपी की है, बीजेपी इलेक्शन कमीशन को बचाएगी, इलेक्शन कमीशन सरकार बनाने में बीजेपी की मदद करेगा। अब बात आती है कि चुनाव सुधार पर चर्चा। इनमें 3 सवाल लिए आपने। पहला सवाल लिया, आज तक के दर्शक देख रहे होंगे कि भाई क्या केवल खाना पूर्ति है? मैं समझता हूं कि बिल्कुल जब सरकार फंस गई, जब 2 दिन तक पार्लियामेंट नहीं चली, सत्र नहीं चला, उसके बाद इनको मजबूरी में इसके ऊपर चर्चा करानी पड़ी। पहले एजेंडे में नहीं पाई साहिल जी, किसी भी एजेंडे में पहले ये चीज नहीं थी। मजबूरी में चुनाव सुधार पर चर्चा करवा रहे हैं। दूसरा सवाल आपका था कि क्या बैलेट पेपर पर जाना चाहिए कि नहीं। उसका मैंने आपको पूरा सीधा बताया कि जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं उसमें टेम्परिंग करना बहुत इजी है। जिस तरह से आज वीवीपैट निकल रहा है, एक कमांड जाती है और कमांड के बाद वीवीपैट की पर्ची निकलती है। जब एक कमांड जा सकती है इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम में, तो दूसरी कमांड भी जा सकती है। तीसरी चीज ये है कि बहुत सारे डेमोज भी आए कि वोट किसी को भी डालो, पर्ची बीजेपी की निकलती है। और खास तौर पर जहां पर डीएम और सीएम, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जिन राज्यों में डीएम और सीएम इनका है,
वहां पर कुछ भी हो सकता है, वहां पर ये कुछ भी करवा कुल सकते हैं। मिलाकर प्रेम शुक्ला जी, लंबी आरोपों की लिस्ट झड़ी यहां पर विपक्ष की तरफ से लगाई गई है। अगर मैं उसे संक्षेप में आपके सामने रखने की कोशिश करूं तो पहला आरोप है कि वोट काटे जा रहे हैं एसआईआर की प्रक्रिया के जरिए। दूसरा आरोप है कि विपक्ष के शिकायतों की अनदेखी चुनाव आयोग करता है और भारतीय जनता पार्टी उसमें शामिल है। चुनाव के दौरान पक्षपाती रवैया अपनाया जाता है, वोट गिनती के दौरान भी वोट चोरी की जाती है और चुनाव में फर्जी वोटिंग भी कराई जाती है। लंबी फहरिस्त है आरोपों की, एक के बाद एक। देखिए, दरअसल जब से जो है बैलेट बॉक्स लूटने का अवसर कांग्रेस को नहीं मिल रहा है, तब से कांग्रेस जो है वो एक बार भी बहुमत पे लोकसभा में आ ही नहीं पाई। आज आदरणीय निशिकांत दुबे जी ने संसद में श्रीमान पी शिवशंकर जो कांग्रेस के मंत्री थे, उनसे इंद्रजीत गुप्ता जी ने जो प्रश्न पूछा था, जिसके जवाब में उन्होंने बताया था किस तरह से बिहार में 1980 के चुनाव में 324 में से 81 सीटों पर चुनाव जो है फिर से कराने पड़े थे। क्यों? क्योंकि उन सारी जगहों पर बूथ लूट लिए गए थे, बैलेट बॉक्स लूट लिए गए थे। इतना ही नहीं, मोहनलाल सुखाड़िया इनके मुख्यमंत्री हुआ करते थे राजस्थान के, उनका चुनाव इसलिए रद्द हुआ था कि सारे बूथ लूट लिए गए थे। तो बूथ लूटने का अवसर ईवीएम आ जाने के कारण नहीं मिल रहा है। 1984 में जब श्रीमती मेनका गांधी चुनाव लड़ रही थी श्रीमान राजीव गांधी के खिलाफ अमेठी में, तब भी किस तरह से मेनका गांधी ने शिकायतें की थी निर्वाचन आयोग को और जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। पूरी तरह से बूथ कब्जा करने का काम अमेठी में 1984 के चुनाव में हुआ था। ये श्रीमती मेनका गांधी का उस समय का आरोप था। और ऐसे तमाम आरोप और तमाम सबूत बाकायदा नलिनी सिंह ने तो एक डॉक्यूमेंट्री बना के किस तरह से बूथ लूटने की प्रक्रिया बिहार में की जाती थी, 1990 के दशक की सबसे प्रख्यात डॉक्यूमेंट्री नलिनी सिंह ने बनाई थी। ये हर किसी को भली भांति याद है। जहां तक निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करने की बात है, नवीन चावला के बारे में तो उनके सहयोगी निर्वाचन आयुक्त ने बाकायदा शिकायत की थी कि किस तरह से निर्वाचन आयोग की सारी गतिविधियां जिनका कोई लेन देन नहीं था। श्रीमती सोनिया गांधी कौन थी? नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, एक असंवैधानिक पद जो निर्मित किया गया था, उसकी प्रमुख को रोज की गतिविधियां निर्वाचन आयोग की ब्रीफिंग की जाती थी। ये कौन नहीं जानता इस गतिविधि को? और इतना ही नहीं, अभी श्रीमान मनीष तिवारी जो हैं संसद में खड़े होकर कह रहे थे कि ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है संवैधानिक है, वो सर्वोच्च न्यायालय से बड़े हैं क्या? सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिकाओं में बाकायदा यह कहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह से कानूनी और पूरी तरह से संवैधानिक है। आज श्रीमान निशिकांत दुबे ने लोकसभा में इसका उदाहरण भी दिया कि किस तरह से संसद की सिलेक्ट कमेटीज ने बाकायदा, जिसमें एचआर गोखले लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने बाकायदा यह जो है कहा था कि एसआईआर होना चाहिए। संसद की कांग्रेस के सरकार के जमाने में जो संसदीय सिलेक्ट कमेटियां बनी थी, उस सिलेक्ट कमेटियों की तरफ से रिकमेंडेशन किया गया था कि एसआईआर होना चाहिए। अब एसआईआर हो रहा है, ये कह रहे हैं कि वोट काट देते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है बिहार के मामले में कि भाई एसआईआर की प्रक्रिया को कंप्लीट हुए महीनों बीत गए, एक जो वैध वोटर रहा हो और जिसका नाम काट दिया गया लाके दे दीजिए। आज तक कांग्रेस वाले ले जाके नहीं दे पाए, न जिन लोगों ने अन्य जो कांग्रेस के जो बगल बच्चा साथी हैं एनजीओ वाले, वो भी आज तक नहीं ले जाके दे पाए। क्यों नहीं दे पाए? आलोक शर्मा जी इस पूरी बातों का जवाब देंगे, क्योंकि एक बार फिर मनीष तिवारी खुद ही आज जब भाषण कर रहे थे तब उन्होंने इस बारे में स्पष्ट कहा कि अगर पहले गलतियां हुई है, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया पहले भी हुई है, तो पहले अगर गलतियां हुई है तो उसका मतलब यह नहीं है कि एक बार फिर वो गलती दोहराई जाए। उस पर आलोक शर्मा जवाब देंगे। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, एक सवाल मुझे आपसे पूछना है। देखिए, रिफॉर्म्स की बात होती है, चुनाव में रिफॉर्म्स की बात की जाती है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का या इलेक्शन कमिश्नर जिस तरीके से नियुक्त किए जाते हैं, उस प्रक्रिया को भी एक तरीके से रिफॉर्म किया गया। और ये सिर्फ सीईसी के बारे में नहीं है, सीबीआई डायरेक्टर हो, सीजेआई हो या बाकी सारी नियुक्तियां भी एक हर कई सालों बाद उसमें रिफॉर्म्स लाए गए, सुधार लाए गए, ताकि लोगों को यह भरोसा हो कि जो ऐसे पदों पर बैठने वाले लोग हैं वो सचमुच में निष्पक्ष तरीके से चुने गए हैं। आज राहुल गांधी आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब वो वहां पर बैठते हैं तब सामने सरकार की तरफ से दो लोग होते हैं, प्रधानमंत्री और अमित शाह या मंत्री जो होंगे, और यहां पर नेता विपक्ष होते हैं। उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता, उनकी बात की कोई तवज्जो ही नहीं रहती इस पूरे मामले में।
क्यों ना इसमें सीईसी लाया जाए, क्यों ना इस पे सीजेआई की नियुक्ति की जाए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। कहीं ना कहीं मैसेज के लिए अच्छा होगा लोगों के सामने कि भाई निष्पक्ष तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की जा रही है। जी साहिल जी इसका मतलब यह है कि सुकुमार सेन से लेकर कांग्रेस के 2014 के कार्यकाल तक जितने निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए, वो सारे चोर और बेईमान थे, और बेईमानी के कारण किए गए, क्योंकि तब तो नियुक्तियां सरकार ही कर रही थी। ये तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में पहली बार हुआ है जब निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए बनी समिति में अपोजिशन लीडर को स्थान दिया गया है। इसके पहले तो अपोजिशन लीडर को स्थान ही नहीं दिया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू चोर थे, ये स्वयं स्वीकार रहे हैं। इंदिरा गांधी चोर थी, ये स्वीकार रहे हैं। राजीव गांधी चोर थे, स्वीकार रहे हैं। श्रीमती सोनिया गांधी कार्यकाल में चोरी का कार्यकाल था, ये स्वीकार रहे हैं। गजब की बात है भाई। आज तो अपोजिशन लीडर को उस समिति में सदस्यता प्रदान की गई तो इनको आपत्ति है। भाई इसके पहले कौन नियुक्तियां करता था भाई? आलोक शर्मा जो है सीबीआई की नियुक्तियों चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं है, ये तो पहले से आरोप लग रहे हैं। ईवीएम पहले से इस्तेमाल हो रहा है, आज ही इस पर आशंका क्यों जताई जा रही है? सीईसी की नियुक्ति जिसका जिक्र बीजेपी के प्रवक्ता भी यहां पर बाकायदा कह चुका है कि ईवीएम। लेकिन मुझे लगता है कि अगर विपक्ष के एक लीडर को बुला लें और बहुमत से फैसला होना हो, सबसे बड़ा वोट चोर आज का प्रधानमंत्री और उनका एक पिट्ठू मंत्री दोनों मिलकर बैठ के सब तय कर लें, तो वोट चोर कौन हुआ? सबसे बड़ा वोट चोर हुआ नरेंद्र मोदी। शब्दों का प्रयोग हो रहा है, पिट्ठू। अरे भाई किसने कहा था अभी पंडित नेहरू के लिए वोट चोर? चले कोई भी अपने नेता के बारे में शब्दों का इस्तेमाल ना करे, ना आप प्रेम शुक्ला जी किसी को चोर कहे, ना वो पिट्ठू कहे। एक डिग्निटी रखते हैं। देखिए ये डिबेट किसी और बात पर चल रही है, एक दूसरे पर मत करिए प्लीज। प्रेम शुक्ला जी प्लीज। बकवास कर रहे थे जब साहिल जी ने नहीं रोका उसको। मैं दोनों को कह रहा हूं इस बात को। नहीं पहले नहीं रोका, पहले रोक देते तो रुक जाते। इसीलिए अरे बकवास मत करो यार। देखिए प्रेम शुक्ला जी प्लीज प्रेम शुक्ला जैसा बकवास करने वाला व्यक्तिगत एक दूसरे के खिलाफ मत करिए। हम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, वरना मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। प्लीज दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज चलिए सब लोग तमीज में रहेंगे, कोई किसी की तमीज का उल्लंघन नहीं करेगा। प्लीज मुद्दे पर बात करेंगे हम लोग। ज्यादा जरूरी यह है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो रहा है ऐसा लोगों को लगे, यह ज्यादा जरूरी है, उस पर बातचीत होना ज्यादा जरूरी है। आलोक शर्मा जी आपकी बात खत्म करिए। प्रोफेसर नवल किशोर, आज एक बार फिर बिहार का मुद्दा उठा है, जरा आप दोनों शांत हो जाइए, उसके बाद मैं दोबारा आता हूं। एक दूसरे पर किसी भी तरीके से इस तरीके के शब्दों का प्रयोग मत करिएगा। प्रोफेसर नवल किशोर, आज एक बार फिर बिहार का मुद्दा निकला है, आज एक बार फिर यह सवाल उठा है कि बिहार के भीतर भी राहुल गांधी कह रहे थे कि वहां पर भी वोट चोरी हुई है और उसके साथ साथ फर्जी वोटर्स के जरिए भी वहां पर चुनाव हुआ है। देखिए साहिल जी, कुछ बातें बहुत स्पष्ट हैं और ये पूरे देश को पता है, और इस बात की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी 2010 में उनके एक नेता जीवीएल नरसिम्हा ने किताब लिखा डेमोक्रेसी एट रिस्क 2010 में, उसका आवरण जो विमोचन किया वो लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। पूरी तरह से देश में ये चर्चा का विषय बना हुआ था कि ईवीएम पर डाउट है, ईवीएम से हो सकता है, गड़बड़ी हो सकती है। वही पार्टी 2025 आते आते तक जो कह रही थी कि डेमोक्रेसी एट रिस्क, उसने उसको एक माध्यम बना लिया और आज डेमोक्रेसी कैप्चर्ड हो रहा है। और उसमें आपने सही बोला कि चुनाव के लिए या लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि चुनाव निष्पक्ष हो, लेकिन चुनाव निष्पक्ष तब होगा जब चुनाव आयोग निष्पक्ष हो, एक एम्पायर की भूमिका निभाए। जब आज चुनाव आयोग ही शक के दायरे में है, संदेह के दायरे में है, आप बताइए ना कि बिहार में ही आप देखिए तो जो पोस्टल वोट का अगर देखा जाए, काउंटिंग देखा जाए तो 143 सीट पे महागठबंधन आगे है, एनडीए 84 पे है। जो वोटर है वो 1,70,000 के आसपास है। 2 लाख वोटर का जो निर्णय है वो उस निर्णय में जो महागठबंधन है 143 सीट पर लीड करती है और एनडीए 84 पे करती है। जो बिहार के लोग जो कि ईवीएम से वोट दे रहे हैं, जो पिछले 20 साल से परेशान हैं, अगर परेशान नहीं होते तो पेंशन जो 400 चल रही थी वो 400 से बढ़ाकर 1100 चुनावी महीने में क्यों किए जाते?
अगर महिलाएं परेशान नहीं होती तो उनके 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 बेटे और उनके पति पलायन को नहीं ये होते तो सरकार चुनाव के महीने में चुनाव के दौरान 10,000 रुपये उनके खाते में गए, चुनाव आयोग क्यों मृत पाया गया? ये सवाल तो बनता है ना। आप सही बोल रहे हैं। देखिए, बैलेट पेपर के समय में होते होंगे कैप्चर, बूथ कैप्चरिंग होते होंगे, तो उसका मतलब क्या कि ईवीएम के आने के बाद पूरा का पूरा चुनाव ही कैप्चर कर लेंगे आप। इसमें उस समय तो बूथ कैप्चर होंगे तो काउंटरमैन कुल मिलाकर प्रेम शुक्ला जी सवाल ये उठाया जा रहा है कि सिर्फ चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराने से काम नहीं चलेगा। करने दीजिए, सुन लीजिए जी हाँ, नवल किशोर जी बोल लीजिए, आप जल्दी बोल लीजिए, मुझे एक सवाल पूछना है। जी मैं देखिए इसलिए ये जरूरी है समझना इस बात को, क्योंकि हम जब सवाल पूछते हैं तो हमें वो सब कुछ दिखता है, तब हम सवाल पूछते हैं। जब चुनाव आयोग खुद कहता है, अगर हम कोई चीज एविडेंस के साथ भी बताते हैं तो कहते हैं हलफनामा दो, और वो पूरा कंस्टिट्यूएंसी पे अगर बात करते हैं उनके पार्टी के लोग तो वो कुछ नहीं कहते हैं। हम चुनाव आयोग से सवाल पूछते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जवाब लेती है, हमसे लड़ने आ जाती है। हम क्यों न शक करें, हमें क्यों न संदेह हो कि चुनाव आयोग और जो भारतीय जनता पार्टी है वो मिली हुई है। देखिए, कुल मिलाकर प्रेम शुक्ला जी, ये भी सारे संस्थाएं, कुल मिलाकर प्रेम शुक्ला जी, सवाल ये उठाया जा रहा है कि चुनाव सिर्फ निष्पक्ष तरीके से कराने से काम नहीं चलेगा। विपक्ष को भी ये लगना चाहिए, लोगों को भी ये लगना चाहिए कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से किए जा रहे हैं। ये कई बार अदालत में कहा जाता है कि न्याय जिसके लिए किया जा रहा है उसे भी लगना चाहिए कि उसके साथ न्याय हुआ है। और इसीलिए कहीं ना कहीं सीईसी की नियुक्ति हो या बाकी सारे सवाल हो, क्योंकि ये बात तो सही है, एक वक्त था कि जब आप भी ईवीएम पर सवाल उठाते थे, आप भी ये कहते थे कि ये जो जीत है किसी और तरीके से की गई है, बैलेट पेपर के तरीके से जीती गई। यह आरोप तो विपक्ष ने पहले भी लगाया हुआ है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। 1971 में श्रीमान राजनारायण जी के खिलाफ श्रीमती इंदिरा गांधी ने चुनाव में धांधली की, तो उन्होंने क्या किया, चुनाव आयोग को गालियां दी कि वो जो है हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया। अगर कहीं पर पक्षपाती चुनाव होता है तो निर्वाचन आयोग के पक्षपात के विरुद्ध क्या कोई फोरम इस संवैधानिक व्यवस्था मौजूद नहीं है? वो फोरम मौजूद है, कोर्ट मौजूद है। अब फिर बीच में बोलने लगे, सुन लीजिए ना, मैंने सवाल पूछा है, बीच पे नहीं, फिर भी गाली देने लगेंगे। अभी नहीं कोई गाली नहीं दे रहा है, अभी फिर गाली देने लगेंगे। अरे प्रेम शुक्ला जी, कोई गाली नहीं दे रहा, भी गाली देंगे। अब हम मुद्दे पर रहेंगे, नहीं तो एक एक करके सभी लोग चले जाएंगे। देखिए, आलोक शर्मा जी निकल गए, प्लीज जरा हम मुद्दे पर रहेंगे। नवल किशोर जी बीच में नहीं, प्लीज। प्रेम शुक्ला जी आप बात करें, चलिए आपकी तो मुद्दे पर ही हूं। हाँ, तो मुद्दे पर बात बीच में कौन आ रहा है? हाँ चलिए। देखिए, अगर निर्वाचन आयोग की कोई प्रक्रिया पक्षपातपूर्ण लगती है तो भारत की संवैधानिक व्यवस्था ने उसके लिए हाईकोर्ट को जो है जुडिशरी दिया है, न्यायपालिका दी हुई है। और जब कहीं पर पक्षपाती चुनाव हो, मतदान से लेकर मतगणना की प्रक्रिया तक कहीं पक्षपात हो, तो 45 दिनों के भीतर अगर आप किसी प्रकार की याचिका दायर करते तो बूथ का सीसीटीवी फुटेज तक जो है वो मंगा लिया जाता है, उसको ईवीएम जो है उसको तत्काल जो है सील कर दिया जाता है, क्योंकि अदालत के सामने खुलेगा। तो पक्षपात पर न्याय करने का जो साधन है वो कौन है? उसकी व्यवस्था दी गई है ना संविधान में। राजनारायण जी ने उस व्यवस्था का लाभ लिया ना। मोहनलाल सुखाड़िया ने चुनाव धांधली के करके जीता तो उसके खिलाफ जो है न्यायालय से न्याय निष्पादित हुआ ना। इस देश में बारंबार न्यायालय से न्याय निष्पादित हुआ है कि नहीं हुआ है? बीजेपी उम्मीद दिखा रही है नवल किशोर जी, अदालत चले जाइए, अदालत से आप मांगिए इंसाफ। अगर अदालत आपसे इंसाफ करता है, आपके पास मौका है अदालत जाने का। साहिल जी देखिए, एक कंस्टिट्यूएंसी की बात हो तब तो कहीं पे जाया जाए। जब पूरा का पूरा चुनाव प्रक्रिया में ही दिखे, चुनाव के दौरान में कैश मैंने डायरेक्ट कैश बेनिफिट दिया जा रहा था, चुनाव आयोग कहाँ था? वही चुनाव आयोग तमिलनाडु में, कई राज्यों में, हिमाचल में चुनाव आयोग ने रोक लगाया था। बीच चुनाव के दौरान बीच में अगर ये किया गया तो जो काम आप कर रहे हैं उसमें चुनाव आयोग की सहमति दिख रही है या मति दिख रही है, ये तो आपको बताना पड़ेगा। एक जगह कहीं पे क्या इसके पहले चुनाव आयोग चर्चा में नहीं रहा था क्या? 1995 का चुनाव ये भूल गए? टीएन शेषन सरकार के खिलाफ पे सारे काम किए थे। चुनाव उस समय बैलेट से ही चुनाव हो गए थे क्या? उस समय ये बात नहीं आई थी क्या
जब देखिए जब इस तरह के सवाल आते हैं, सवाल पूछे गए हैं, ये मैं बात तो कह रहा ठीक हूं है। कि भारतीय जनता पार्टी अपना इतिहास क्यों अगर भूल जाती चुनाव है? आयोग 2010 निष्पक्ष तरीके से में चुनाव जो करने था, की वो करने कोशिश क्या हो छूट था वो? तो सत्ता में कैसे बदल होता है, ये टीएन शेषन ने कई बार दिखा दिया है। अगर उसी तरीके से अगर चुनाव की प्रक्रिया को लागू किया जाए तो क्या फर्क होता है, ये टीएन शेषन दिखा चुके हैं। आपको याद होगा प्रेम शुक्ला जी, उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि आई एम नॉट अ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आई एम द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये साफ शब्दों में टीएन शेषन वहां पर कहते थे। और इसीलिए चुनाव आयुक्त भी कहीं ना कहीं निष्पक्ष होने की जरूरत है। यही बात विपक्ष बार बार कहने की कोशिश कर रहा है। प्रेम शुक्ला जी जल्दी से, उसके बाद टीएमसी के प्रवक्ता भी बात करेंगे। हिम्मत है ये कहने का? आज भी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ही है, वो ईसीआई है। फिर ये बोलने लगे बीच में, आज भी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ही है। और जिस मुद्दे पर बार बार उठाया जा रहा है, साहिल जी कृपा करके कन्फ्यूज, ये देखिए फिर देखिए बीच में कूद पड़े। ये जरा इनसे शांत रहने को कहिए, इनको रोग है। बोलिए प्लीज। ये कृपा करके समझ लीजिए कि जब ये बाकायदा सर्वोच्च न्यायालय का, निर्वाचन आयोग का और सर्वोच्च न्यायालय का, पूछ रहा हूं। अरे भाषा आपका संकट है, भाषा का आपका संकट है। ज्ञानेश कुमार जी, अब फिर देखिए, के डेट में अब इनको क्या कहा जाए, साहिल जी इसको क्या कहा जाए बताइए मुझे। नवल किशोर जी, मैं साहिल सवाल जी क्या पूछ ही रहा कहा हूं जाए उसको। इसको? मैं सवाल पूछ ही रहा हूं। साहिल जी नवल क्या किशोर कहा जी, जाए? उनकी बात तो मैं खत्म लगातार कर उनके लीजिए बीच में बोलूं ना। बीच में बोलेंगे तो कोई बात नहीं कर पाएगा ना नवल किशोर जी। हम चर्चा लगातार यहां पर उनके कर बीच रहे में हैं और सभी लोगों को बोलने का मौका भी मिल रहा है। सभी लोगों को बोलने का मौका भी मिल रहा है। प्लीज नवल किशोर जी। प्रेम शुक्ला जी, आपकी बात खत्म करिए, चलिए। ये जंगल राज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है जंगल। देखिए ये बोलिए टेलीविजन की डिबेट है, जंगल राज नहीं है। बोलिए। वही बात, देखिए ये दंगा राज नहीं है। देखिए निर्वाचन आयोग ने, देखो सर्वोच्च न्यायालय में, फिर देखिए आ गए। जो दंगाई माहौल आप देश ये में बना जंगल राज बिल्कुल नहीं। फिर देखिए चलिए कौन नवल कर किशोर रहा जी है? जरा जवाब सुन लेते साहिल जी, हैं। आलोक शर्मा जी ज्वाइन आप कर यहाँ चुके हैं, उनके पास मुझे दोबारा जाना है। जरा नवल किशोर जी को शांत करिए प्लीज। प्रेम शुक्ला जी, आपकी बात खत्म करिए। मुझे जवाब देने का अवसर बोलिए, मिलेगा बोलिए। कि मैं शांत हो जाऊं? बोलिए प्रेम शुक्ला जी, चलिए बोलिए। भाई मुझे खत्म करने देंगे तब ना। अरे बोलिए ना सर, बोलिए। भाई ये जंगल राज वाले जो है बात ही नहीं खत्म करने देते ना। हाँ देखिए, बाकायदा सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है इस बारे में कि अगर कोई सरकार की स्कीम पहले से लागू है तो वह स्कीम चुनाव के समय भी लागू रहती है। चुनाव के समय कोई नई स्कीम सरकार नहीं लागू कर सकती। तो बिहार की जिस स्कीम की ये बात कर रहे हैं वो चुनाव के पूर्व लागू हो चुकी थी, इसलिए चुनाव के समय भी वह योजना लागू थी। ऐसा निर्वाचन आयोग का निर्णय है। अब उसमें से कुछ पार्ट आप छुपा कर कुछ किसी भी तरह की बात करने लगे तो आपकी इच्छा, आप करिए, आप जाइए ना निर्वाचन आयोग के इस निर्णय के खिलाफ न्यायालय में। कौन रोक रहा है आपको कि निर्वाचन आयोग ने अब पक्षपात किया है? ऐसा आपको लग रहा है तो चुनाव के बाद जो है न्यायालय के दरवाजे आपके लिए बंद हो गए। आलोक शर्मा जी, आपसे भी इस पर एक जवाब। टेलीविजन डिबेट में आप जो कह रहे हैं, बार बार इतना ही जोर भारतीय डालने जनता में पार्टी के न्यायालय में प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो न्यायालय में जाइए। जिस तरीके से राजनारायण गए थे 1971 में और वहां से फैसला लेकर आए वो, जिसके बाद देश की राजनीति बदल गई थी। आज हालत ये है साहिल जोशी जी, कि हिंदुस्तान के ज्यादातर हाई कोर्ट में एबीवीपी के लोग बैठा दिए गए। एक जज के यहाँ दिल्ली के अंदर कमरा भर के नोट मिले थे। क्या हुआ उसके ऊपर? जिस देश के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सरेआम वीएचपी का कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद का अशोक सिंघल का करीबी सरेआम कोर्ट के अंदर जूता मार रहा हो, किस तरह का न्याय हो रहा होगा पूरा देश देख रहा है। किस तरह की न्याय प्रक्रिया चल रही होंगी। आज भी तमाम टिप्पणियां आ रही हैं कि बुलडोजर से ही सारा न्याय हो रहा है, न्यायालय बंद कर देनी चाहिए। ये आप समझिए बात को कि पूरे देश के लोकतंत्र को कब्जा लिया गया है। संसद के अंदर 150 सांसदों को सस्पेंड करके बिल पास कराए जाते हैं। जिस समय पर 10-10 हजार रुपए जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन डाले जाते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का लैपटॉप बांटना बंद कर दिया जाता है। अशोक गहलोत जी की सरकार का मोबाइल बांटना बंद कर दिया जाता है। 2 एग्जाम्पल मैंने दिए, ऐसे दर्जनों एग्जाम्पल हैं कि विपक्ष की सरकारों की योजनाएं बंद हो जाती हैं और बीजेपी की सत्ता पक्ष की योजनाएं, जहां पर बीजेपी सत्ता में है, वो वोट चोरी करने के लिए नरेंद्र मोदी जी को खुली छूट मिल जाती है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं। इलेक्शन कमीशन बराबर है बीजेपी और बीजेपी बराबर है इलेक्शन कमीशन। और हम नहीं कह रहे, ओपी रावत जी जो इससे पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, आप ही के टीवी चैनल पर क्या क्या बता के गए हैं वो। अशोक लवासा ने एक छोटा सा आवाज निकाली थी, ईडी सीबीआई उनके पीछे लगा दी थी। आप लोग भी सतर्क हो जाइए।
एनडीटीवी कैसे बिका था पूरा देश तो आपको जानता। क्या चाहिए? आप कहते हैं कि आप अदालत पर आपका भरोसा नहीं है, आप कहते हैं कि चुनाव आयोग मैंने नहीं निष्पक्ष कहा कि नहीं अदालत पर है, भरोसा सारी नहीं है। चीजें गलत तरीके से हो मैंने रही ये है, नहीं कहा। तो मैंने आखिरकार ये नहीं क्या कहा कि करें? अदालत पर भरोसा क्या नहीं। होना एक मिनट चाहिए? साहिल जी। एक विपक्षी साहिल जी, पार्टी मैंने के नहीं रूप कहा में आपको अदालत क्या पर करना भरोसा चाहिए? नहीं। एक मिनट साहिल जी, जी। हमें अदालत पर भरोसा है, लेकिन अदालत में जिस तरह के लोग जा रहे हैं आज, राहुल गांधी के खिलाफ किस तरह का जजमेंट आया था और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। जब राहुल गांधी जैसे कद के व्यक्ति को न्याय मिलने में इतनी दिक्कत हो सकती है कि उनकी अपना सदस्यता गंवानी पड़े, तो सोचिए न्यायालय में न्याय मिलना कितना कठिन हो गया होगा। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि साहब इलेक्टोरल बॉन्ड भी याद होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ही रद्द किया था ना, इलेक्ट्रल बॉन्ड। आपको आप इसके तो मार्क्स देंगे ना अदालत को। आप सुनिए साहिल जी इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को रद्द किया था ना सुप्रीम कोर्ट ने। साहिल जी, जब हम कह रहे थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड गलत है, तो हिंदुस्तान का सारा मीडिया हमें गालियां दे रहा। अब मुंह मत खुलवाइए मेरा। नहीं, क्या आज तक क्या बोले हेडलाइन थी मेरे पास है, वो मेरे पास वो आज तक की हेडलाइन है। अरे भाई मुझे बताइए, मैंने वही पूछा ना कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया ना, खारिज कर दिया ना इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को। साहिल जी, नोटबंदी हुई थी तो पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने कांग्रेस को कोसा था, उसकी हेडलाइंस भी मेरे पास है। अरे आपको किसी पर भरोसा नहीं है तो कैसे होगा फिर? बताइए, आपको चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है, आपको अदालत पर भरोसा नहीं है, इतने निगेटिविटी में कैसे जी सकते हैं सर कोई? साहिल जी, शो के अंदर देख लीजिएगा, पूरा सत्ता पक्ष जो सत्ता में बैठा है वो केवल इलेक्शन कमीशन की स्तुति करेगा, बाकी सब विरोध करेंगे। ठीक है, जेडीयू और बीजेपी कहेगी इलेक्शन कमीशन बहुत बढ़िया। टीएमसी सरकार में रहने के बावजूद कह रही है कि गलत है। हम सवाल उठा रहे हैं, ये बात सरकार की नहीं है, ये पक्ष और विपक्ष की नहीं है, ये बात है भारतीय लोकतंत्र को बचाने की। ठीक है, आपने टीएमसी का जिक्र किया है, संजय शर्मा जी आपकी भूमिका भी बता दीजिए, क्योंकि पिछले 3 चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने तमाम कोशिशें की, लेकिन उसके बावजूद टीएमसी बंगाल में जीत रही है। क्या इसके बावजूद आपको लगता है कि चुनाव की प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं है, पक्षपाती है और सरकारी पक्ष के साथ यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ में वो खड़ी है? क्योंकि आप बंगाल में 3 बार चुनाव जीत चुके हैं, विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव। हाँ, हम 3 बार चुनाव जीत रहे हैं साहिल जी, और फिर अभी चौथा चुनाव जीतने की तैयारी में हैं। लेकिन आप गौर करिएगा कि बिहार की चुनाव प्रक्रिया के दौरान जिस तरह चलते हुए चुनाव में पैसे बांटे गए, लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे बांटे गए, भाजपा के मंत्री, सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड के मंत्री 20-20, 50-50 गाड़ियों का कॉन्वॉय लेकर चलते थे, उन्हें कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं था। और अभी बंगाल के चुनाव आएंगे, आप देखिएगा आपको चुनाव आयोग मिलेगा, लेकिन बंगाल की जनता भाजपा से और चुनाव आयोग की तमाम जटिलताओं से लड़ने का मन बना चुकी है, पहले से ही लड़ती आ रही है और फिर फाइट करेगी। आज मुश्किल क्या है, चुनाव आयोग ही सिर्फ नहीं, ये पूरी की पूरी एनडीए और भाजपा के लोग, अहंकार इनके सर पर चढ़कर बोल रहा है। ये इतने अहंकारी हो गए हैं कि जनता के सवाल पूछने का, सवालों को जवाब देने का इनके पास समय नहीं है। आज इंडिको इतना बड़ा संकट एक लोगों पर आ गया, लाखों लोग प्रभावित हुए, इनके पास कोई जवाब नहीं है, ये किसी को एंडोर्स नहीं करते। और संसद में बंगीय अस्मिता के प्रतीक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का नाम बंकिमदा बोल के प्रधानमंत्री लेते हैं, और इनके और एक मंत्री तो वो नाम भी भूल जाते हैं। इन्हें याद रखना चाहिए, देश की जनता इनसे दुखी है, और ये हर बार तभी क्यों काम करते हैं जब लोगों की जाने जाती हैं। मैं चुनाव आयोग से पूछना चाहता हूं, इतने बीएलओ की जान गई, तब जाके आपने 7 दिन डेट बढ़ाई इसकी, आप पहले बढ़ा देते। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि चुनाव अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। कि बंगाल के भीतर एसआईआर की प्रक्रिया में बीएलओ डिजिटाइजेशन तो फटाफट कर रहे हैं, मतलब 99% तक करीब करीब हो चुका है वहां पर। अभी भी आपको चुनाव आयोग से शिकायत है वहां पर? अभी जाके हुआ ना, कितना प्रेशर झेला, कितने लोगों की साहिल जी जान गई कि नहीं गई, और इतने लोगों की जान जाने के बाद इन्होंने 7 दिन का समय बढ़ाया। आप याद करिए, मैं आपके माध्यम से देश को याद दिलाना चाहता हूं, नोटबंदी के समय कितनी जाने गई, बाद में इन्होंने थोड़ा थोड़ा रिलैक्सेशन दिया। जीएसटी जब लागू हुआ तब क्या नियम थे, क्या शर्तें लागू की गई थी, लोगों के विरोध के बाद धीरे धीरे उसमें ढील दी गई।
सारा ये सिस्टम भाजपा का ये पूरा विपक्ष कुनबा के लोग चुनाव अहंकारी हो जीते चुका है। या चुनाव मैं हारे, आपके माध्यम से- चुनाव मैं आयोग आपके और चुनाव की माध्यम से प्रक्रिया इनको पर कहना चाहता उनके हूं। सवाल लगातार उठते आ रहे हैं। क्या जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है, इसके लिए नहीं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि कम से कम प्रक्रिया में कुछ सुधार की जरूरत है, जिसकी वजह से लोगों को लगे, विपक्ष को लगे कि हां निष्पक्ष तरीके से चीजें हो रही है? साहिल जी, इंडिया अलायंस में जब से एसआईआर के बना बाद भी है, 1,20,000 फर्जी वोटिंग का आरोप लगा है बिहार के भीतर। नहीं, ठीक है साहिल जी, मैं कह रही हूँ कि इंडिया अलायंस जब से बना है और जिसपे कांग्रेस इसमें सहयोगी दल के रूप में उसने एक कसम खाया है, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। पूरे बिहार इलेक्शन में एसआईआर की प्रक्रिया पूरे देश में पहली बार शुरू हुई बिहार में। जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी तब कांग्रेस क्या कह रहा था? हरियाणा का बात कर रहा था, वो महाराष्ट्र की बात कर रही थी। इलेक्शन के पहले, वोटिंग के पहले 1 महीने पहले आपको वोटर लिस्ट जारी कर दी गई। आज आपको याद आ रहा है कि भाई इसमें फर्जी वोटर इतने सारे थे, इतने सारे डुप्लीकेट नाम थे। तब आप क्या कर रहे थे? तब आप यह कर रहे थे जैसे कि आरजेडी की नैया आपने डुबाई है और आरजेडी मानती है कि कांग्रेस एक कमजोर करी थी कि उसने पूरे इलेक्शन को एसआईआर के मुद्दे पे, वोट चोरी के मुद्दे पे लाकर रख दी। और आज वही काम ये टीएमसी के साथ करे, क्योंकि टीएमसी अभी कह तो रही है ना कि हमने 3 बार इलेक्शन जीते हैं, चौथी बार भी जीतेंगे, पर ये नहीं जीत पाएंगे। मैं आज आपको बता देती हूँ, क्योंकि कांग्रेस के नक्शे कदम पे चलना चालू कर दिए हैं। कांग्रेस, क्योंकि 2014 के बाद से कांग्रेस, सुन लीजिए, नहीं ठीक है सर, मैंने बीच में बोले नहीं, ठीक है, मैं आप बीच में नहीं बोली, मैं सुन लीजिए। 2014 के बाद में कांग्रेस ने जो अपनी जमीनी हकीकत को खोई है, उसके पास में अपनी स्थिति को मजबूत नहीं करने के लिए कोई, उनके पास में कोई तर्क नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, कोई वर्क मैप नहीं है इनके पास में। तो बस एक काम कर रहे हैं, देश में सारी तंत्रों का सवाल उठाते हैं। मैं एक बात पूछ रही हूँ साहिल जी, इलेक्शन एसआईआर के प्रक्रिया के दौरान में कांग्रेस और तमाम राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? एसआईआर की प्रक्रिया फर्जी नहीं है। उसने ये इस पे लागू किया कि एसआईआर की प्रक्रिया होगी। क्यों? एजेंडा क्या है हमारा? कि हमारा निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। निष्पक्ष चुनाव होने के लिए क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए? कि डुप्लीकेट वोटर्स नहीं होने चाहिए। मिलाकर चर्चा इस बात को लेकर भी चल रही है अनुप्रिया जी, कि सिर्फ निष्पक्ष चुनाव से काम नहीं चलेगा। जो चुनाव निष्पक्ष हो रहा है वो निष्पक्ष तरीके से हो रहा है, ये दिखना भी चाहिए, महसूस भी होना चाहिए। आपने टीएन सेशंस का नाम डिस्कशन किया। टीएन सेशन ने जब अपनी जिम्मेदारी को निभाया था, तब किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। उसने सत्ता पक्ष के खिलाफ काम किया। इसका मतलब कांग्रेस ने जो यही तो विपक्ष कहने की कोशिश कर रहा है। एक मिनट अनुप्रिया जी, यही तो विपक्ष कहने की कोशिश कर रहा है। वही तो मैं बोल रही हूँ ना साहिल जी। इसका अर्थ यह है कि कांग्रेस ने जितने साल सत्ता में यहाँ पे चलाई अपने देश में, उन्होंने सारे सरकारी तंत्रों का गलत इस्तेमाल किया और सत्ता में। चलिए ये बहस इसी तरीके से चलती रहेगी। उधर लोकसभा के भीतर भी ये बहस चल रही है। अभी भी कई सांसदों को इस पर अपनी भूमिका रखनी है। माना जा रहा है कि सरकार की तरफ से अमित शाह इस पर अपनी भूमिका रखेंगे, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी।